کیسے ان کو ابھی ہماری بک سے ثابت کرو، ہماری بک بھی ضعیف ہیں، ان کو جلا دو. اصول کافی کا بول رہا ہوں تو وہ انکار کر رہا ہے. ہم سنی روایت پیش کر رہا ہے. میں نے کہا پھر سنی روایت اگر صحیح ہے تو پھر تو تمہیں سنی ہو جانا چاہیے. اچھا ابھی جب حضرت عمر نے حملہ کیا تھا تو فاطمہ کے گھر پہ تو جلاؤ لوئی نہیں آنا جائے گی. ساری روایت اس سے دیں گے پھر. اچھا ساری روایتیں وہاں سے آئیں گی. ہاں وہاں سے آئیں گی. ضعیف ہو گئی، ابھی ضعیف ہو گئی. نہیں اس موقع پہ یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا ہے جس پر ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا. نہیں اس وقت ساری روایتیں جلاؤ لوئی ان کی ہیں. بالکل پوری کتاب میں ساری روایتیں لکھی. ہاں جلال العیون کی ہیں، حیات القلوب کی ہیں، اپنا یہ بہار الانوار کا واقعہ ہے والم 3. اس سے کہتے ہیں نہیں ملا باقر مجلسی کو ہم نہیں مانتے. ابے باقر مجلسی کو کیسے نہیں مانتے یار، سب سے بڑا عالم ہے. بولا نہیں وہ ہم مجھ سے بڑے عالم ہیں. یہ بخاری بھائی کی شروع نہیں ہے کبھی بھی میں مزہ کرنا ہی مزہ تو یہ کرے گا. آ گئے سیم بھائی؟ ہاں بھائی وعلیکم السلام. تمہارا تو علی ایک بھائی کے سوا چارہ بھی نہیں چلے گا. میں اکیلا ہوں، کوئی ہے جو آپ لوگوں سے بات کر رہا ہے سوائے میرے؟ 4 بندے تم بات کر رہے ہو. آپ لوگوں نے اپنی بک سے انکار کیا. میں نے کسی بک سے انکار کیا؟ میں نے صحیح بخاری سے انکار کیا، میں نے صحیح مسلم سے انکار کیا. تم لوگوں نے اصول کافی سے انکار کیا، تم نے ملا باقر مجلسی سے انکار کیا، تم نے اپنی بکس کو مانا ہی نہیں. ہم اس کو نہیں مانتے، تم مانتے نہیں ہو تو یہ بھائی اب تو میں نہیں مانا، اب میں جیت نہیں سکتا بھائی. نہیں مانتے، ہٹ دھرمی ہے نا، اس ہٹ دھرمی پہ ہم جیت نہیں سکتے. ہم ظہیر بھائی کا کام ہے کہ حدیث کے راوی بتائیں اور ضعیف ثابت کریں. ظہیر بھائی کوئی تنخواہ لے رہا ہے تم لوگوں سے؟ ظہیر بھائی کو تم تنخواہ دے رہے ہو حدیثوں کو صحیح ضعیف کرنے کے لیے؟ میرا کام ہے کہ اصول کافی کی حدیثیں بیٹھ کے ضعیف قرار دے دوں. یار خیر طلب صاحب نے جو ضعیف راوی نہیں سنو سیم بھائی، خیر طلب صاحب نے جن راویوں کو یعنی کہ کذاب کہا تھا خیر طلب صاحب کے پیجز پہ، وہ فروغ کافی میں اتھینٹک حدیث پیش کر رہے ہیں. میں نے جب پیجز دکھائے تو خیر طلب کہتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے. یار تم اپنے عالموں کی بات نہیں مانتے ہو یار. فروغ کافی میں وہی کذاب راوی صحیح اتھینٹک حدیث کیسے پیش کر رہا ہے؟ نہیں میں نہیں بھاگا ہوں، میں یہیں بیٹھا ہوں، میں نہیں بھاگا ہوں، میں اپنی بک سے انکار بھی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو جواب دوں گا، اس بک کا رپلائی دوں گا، ضعیف نہیں کہوں گا، اس بک کا اتھینٹک اور طریقے سے رپلائی دوں گا. یہ نہیں کہ ضعیف ہے چلا دو، ایسے نہیں ہوتا. یہ ڈبیٹ ایسے نہیں ہوا کرتی، یہ ڈبیٹ ایسے نہیں ہوا کرتی. کس نے لکھا ہے؟ اچھا میں نے اپنے مطلب کی بات صحیح ہے. کیوں لالی پاپ میں کیوں کھاؤں؟ دن تم پوچھ رہے ہو، ٹائم پوچھ رہے ہو. اچھا کون سے حوالے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے بعد سیاستہ حجت ہے ہمارے اوپر. سیاستہ سے ثابت کرو، سیاستہ سے ثابت کرو. کون؟ میں شیعہ اپنی بکس میری، آپ لوگ چلتے ہماری بکس پہ ہو. آپ دکھاؤ نا. میں بیٹھا ہوں، میں یہیں بیٹھا ہوں، میں جواب دوں گا، میں بھاگوں گا نہیں. میں پینٹ سنبھالتا ہوں، ہم بھی بیٹھے ہیں، پینٹ تو اپنی سنبھالو. میں آپ کو اپنی بک سے ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. کیا نکالوں؟ کیا باہر نکالوں؟ کس کو؟ نہیں کس کو باہر نکالوں؟ کیا کہاں باہر نکلو؟ بات یہ ہے کہ باقر منسی کی جو آپ کتاب دی ہے وہ ضعیف ہے. باقر منسی کے علاوہ ہمارے دیگر علماء کی کوئی کتاب نہیں شو کرے.
अच्छा, बाकर मजलिसी को नहीं मानते आप? चुप कर सैम, चुप कर। अली भाई आप क्या कह रहे हो? हाँ, लाहौल वाला को चुप कर बैठ। हाँ अली भाई आप क्या कह रहे हो? हाँ 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 अली भाई आप क्या कह रहे हो? जी हाँ मैं कह रहा हूँ कि आप बाकर मस्जिद के अलावा दीगर और वहाँ से भी साबित है ना, आपसे हमारे आइमा से साबित करें। अच्छा अच्छा अच्छा, मुल्ला बाकर मजलिसी ने अच्छा 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 खुद मैंने उनकी किताब से आपको साबित कर दिया, मुकदमे में वो खुद कह रहे हैं मेरी रिवायतें बहुत सारी नहीं है। अच्छा अच्छा तसलीफ नहीं की। तसलीफ का मतलब पता है तसलीफ किसे कहते हैं? अच्छा, आपने एहतजाज तिब्रिसी का भी हवाला दिया है, एहतजाज तिब्रिसी का भी आपने हवाला पेश किया था, आपको याद है? एहतजाज तिब्रिसी याद है ना? शेख तिब्रिसी की किताब, शेख तिब्रिसी की किताब याद है ना? अब मुल्ला बाकर मजलिसी साहब हयातुल कुलूब पेज नंबर 1023-22 नहीं, रावी के साथ बता रहा हूं मैं, 1022 में है कि शेख तिब्रिसी ने हजरत इमाम बाकर से रिवायत की। अब ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब नहीं, ये एहतजाज तिब्रिसी से हवाला दे रहा। कौन? मुल्ला बाकर मजलिसी साहब। अब आप एहतजाज तिब्रिसी से इनकार करोगे? क्या जी, जब मुहाजिर अंसार 10-10 अफराद होकर दाखिल हो गए, जब मुहाजिर अंसार, अच्छा सकीफा बनी सादा में तू छलांगे मार रहा था, सकीफा बनी सादा में कौन खड़ा था वहां? सकीफा बनी सादा पे बैत किसने की थी? मुहाजिर अंसार ने ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे बैत किसने की थी? अली भाई बैत किसने की थी? मुहाजिर अंसार ने की थी ना। जब मुहाजिर अंसार मौजूद थे तो उनका खलीफा कैसे मौजूद नहीं होगा? जब मैं जिसका फॉलोअर हूं, मैं मेरा इमाम ही जनाजे में मौजूद नहीं, मैं कैसे जनाजा पढ़ लूंगा? अच्छा शेख तिब्रिसी, सुनो सुनो, उसूल काफी में लफ्ज हैं, शेख तिब्रिसी उसूल काफी में लफ्ज हैं, सुनो। इमाम मोहम्मद बाकर से सेम रवायत है, इमाम मोहम्मद बाकर, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आपको पेज बता रहा हूँ, उसूल काफी वॉल्यूम 3 पेज नंबर 27। इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया जब रसूल खुदा की रूह कब्ज हुई तो मलाइका मुहाजिरीन और अंसार ने जोक दर जोक आन हजरत पर नमाज पढ़ी। क्या मुहाजिरीन व अंसार का लफ्ज यहाँ मौजूद नहीं है? अब आप कहते हो कि यह हदीस ज़ईफ है, आप कहते हो यह हदीस ज़ईफ है, आप कहते हो हदीस ज़ईफ है अली भाई, आप कहते मुहाजिर व अंसार नहीं, अंसार न और मुहाजिर ने किसके हाथ पे बैत की थी? मेरे हाथ पे, आपके हाथ पे, किसके हाथ पे की थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे की थी ना। सकीफा बनी सादा का जो वाकया है उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे की थी। तो जब खलीफा मौजूद नहीं नमाज में तो उनके पैरोकार कैसे नमाज में मौजूद हो गए? अच्छा चले, मैं अब एक बात यहाँ इसका मतलब है कि जनाजा रसूल को छोड़कर ये सारे वहां चले गए थे। कहाँ? बनी सकीफा में चले गए थे। अच्छा जी 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 जी, बनी सकीफा में क्यों चले गए थे आपको पता है? आप शेख तिब्रिसी को मानते हैं ना, और तो किसी को मानते ही नहीं है। एहतजाज तिब्रिसी जी सुने, एहतजाज तिब्रिसी पेज नंबर 117, ठीक है। रसूल अकरम की वफात के बाद अबू बकर अपने ऊंट पर सवार मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हुए कह रहे थे, तुम परेशान व मुस्तरब क्यों हो? अगर मोहम्मद इस दुनिया में नहीं तो क्या उनका खुदा जिंदा बाकी नहीं? गुज़िश्ता पैगंबरों के मानिंद मोहम्मद भी एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम राह खुदा को छोड़ दोगे? अगर कोई राह हक से मुंह फेर ले तो खुदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद कुछ अंसार साद इब्ने अबादा के घर जमा हुए और उन्हें सकीफा में ले गए। मुहाजिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जमा हुए और अंसारी साद बिन अबादा के पास जमा हुए, कुरैश हजरत अली के पास जमा हुए। रियासतें हो जाती अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक सकीफा बनी सादा में न जाते। जैसे कि पाकिस्तान हुकूमत है अभी जीएम सैयद कहता है कि सिंधु, सुनो बात करने दो मुझे, सिंधु देश
GM सईद कहता है सिंधु देश हमारा, सिंधु देश अलग है। तो पाकिस्तान हुकूमत का काम है ऐसी आवाज को दबाए कि नहीं पाकिस्तान हुकूमत एक है, कोई सिंधु देश अलग नहीं है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ना निकलते तो ये 3 रियासतें बन जाती, 3 रियासतें बन जाती। कुरैश की अलग होती, मुहाजिरीन की अलग होती, अंसार की अलग होती। एक इस्लाम एक झंडे के तले खड़ा ना होता। आज इस्लाम खड़ा है तो अबू बकर सिद्दीक की वजह से। वो गए सकीफा में गए, उनको एक जगह खड़ा किया। अगर एक जगह खड़ा करना तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम काफिर हो, मेरी तरफ से तुम काफिर हो। और ये साबित है कि सकीफा बनी सादा में वो उनका जाना इस्लाम को एक जगह जमा करना है, और ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, इस्लाम के हक में है। अगर इससे इनकार है तो तुम काफिर हो। मैं तुम पर काफिर का फतवा लगाता हूं। तो ये नहीं ये मुहाजिर अंसार को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया, कुरैश को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया, क्या ये गलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त ये तीनों गिरोह अलग अलग हो गए थे, क्या ये गलत है? क्या ये इस्लाम के गलत मुनाफी है? क्या ये इस्लाम के खिलाफ है जो तुम इतना उछल रहे हो उनके ऊपर? और वो वापस आकर जनाजे नमाज अदा करते हैं। जोक दर जोक मुहाजिर व अंसार ने नमाज जनाजा अदा की, तो क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां मौजूद नहीं थे? सकीफा बनी सादा में क्या कर रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक? जब मुहाजिर व अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा नमाज अदा की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहां थे? आप मुझे दिखा दो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज नहीं पढ़ी। मुझे अपनी इस रिवायत में कहीं लफ्ज दिखा दो हजरत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी, मुझे दिखा दो आप। मुहाजिर व अंसार ने जब नमाज पढ़ी तो सकीफा बनी सादा में वो क्या कर रहे थे? आप मुझे जवाब दो ना। एक झंडे तले जब सबको जमा किया, नहीं अली हक भाई, आप अली हक की बात करते हो। हजरत अली इस्लाम के पैरोकार थे ना, मुसलमान थे वो। जब इस्लाम के तले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? क्या यहूदियों के एजेंट हो तुम लोग? क्यों? जब वो इस्लाम के नीचे एक झंडे तले उन्होंने जमा किया, उसके खिलाफ तुम बोलते हो। एक झंडे तले जमा करना गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। अगर इस्लाम के खिलाफ है तो हाँ, हमने इस्लाम के झंडे के तले सहाबा ने जमा किया। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये यहूदियों के खिलाफ है। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये कुफार के खिलाफ है। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये ईसाइयों के खिलाफ है। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये इस्लाम के हक में था। सकीफा बनी सादा में जाना और सबको एक जगह जमा करना और बाद में नमाज जनाजा पढ़ना, इसमें कोई गलत नहीं। अगर साबित कर सकते हो गलत है तो मैं शिया बन जाऊंगा। क्या साबित करोगे तुम? क्या साबित करोगे? कुरैश मुहाजिर अंसार 3 गिरोह अलग बन रहे थे, क्या साबित करोगे तुम? मैं अपने माँ में से नहीं हूं, तू अपने बाप में से है, मुझे पता है। तू अपने बाप की कितनी हलाल की औलाद है, मुझे पता है। हाँ अभी बताओ सुनी रिवायत से साबित करोगे? वो भाग गए थे सारे। बोल। हाँ जी, किताब अल-कामिल फी तारीख जिल्द 2 सफ़ा नंबर 5 मतबूआ एडमिशन। मतलब कौन सी किताब? जिल्द 2 सफ़ा नंबर 632। कौन सी किताब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैश उसामा तैयार किया और उसको लश्कर को भेजा। जैश उसामा के तहत अबू बकर और उमर को भी भेजा कि जाओ लश्कर के तहत मदीने से बाहर निकल जाओ, जाके लड़ाई करो। किताब उसके बाद असीरत नबविया इब्न हिशाम जिल्द नंबर 4 मतबूआ मिसाल सफ़ा नंबर 299 और 300। उसके बाद